एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब है, जिसका असर व रसूख नहीं है, वेल कनेक्टेड नहीं है, उसको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता हमारे अदालती निज़ाम से। अल्टीमेटली इंसाफ मिल रहा था, लेकिन ये जो अल्टीमेटली है ये आता बहुत देर के बाद। इज दैट देयर आर एक्सूबरेंट डिलेज इन द सिस्टम और हम एक बहुत बड़ी पेंडेंसी का शिकार। 2.2 मिलियन केसेस, अ पॉपुलेशन ऑफ 230 मिलियन, 23 करोड़ की पॉपुलेशन और सिर्फ 3,400 जज। डू यू ट्रस्ट द जस्टिस सिस्टम टू गिव यू जस्टिस? 75% ऑफ देम सेड एब्सोल्युटली यस। हम कई केसेस को देखते हैं कि वो दे गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन एंड पब्लिक सेंटिमेंट, और फिर उनको ओपन एंड शट केसेस तस्वुर करने लगते हैं। आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू द नूर मुकद्दम केस। द परसेप्शन इज दैट द लीगल सिस्टम इज नॉट delivering, so I will get away with it. मैं कुछ भी कर लूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता. The other thing that's happening is we have forgotten to talk amicably to each other. Yeah. कि अगर dispute हुआ हम आपस में negotiate करेंगे, 90% that tends to fail. वो court and ex mediation center में बैठेगा, बाकी judges उसको mediation के cases refer करेंगे, 60% success rate. अगर the immovable object is our climate and our planet's reality, sustainability, और दूसरी तरफ जो force आ रही है वो force है capitalism की, can this greed be somehow mediated? The world has currently spent approximately $5 to $6 trillion on renewable energy. Do you know what the total oil consumption has jumped down from? It has jumped down by 1%. Hello and welcome to another conversation with me, Sidra Iqbal. Thank you very much for appreciating our first season. और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा pertinent, insightful conversations आपके लिए लेके आएँ। सबसे ज़्यादा अहम बात है कि ये वो टॉपिक्स हैं, वो इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं। And today let's talk about Pakistan's judicial system, our justice system. वैसे तो बड़ी मशहूर कहावत है कि justice delayed is justice denied, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लिटिगेशन में पड़ना या अपना केस कोर्ट में लेके जाना किसी भी ग्रीवियंस की वजह से एक बहुत ही लंबा, टीडियस, थका देने वाला, सब्र आजमा प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि हम आम फहम ज़बान में ये कहते हैं कि खुदा दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगवाए। तो ये हमारा तासुर क्यों है? What are the bottlenecks? क्या ऐसा बड़े मुल्कों में होता ही है? हमारे यहाँ क्या इंटरवेंशंस की जा सकती हैं ताकि एक मुद्दई को आसानी से और एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उसके लिए इंसाफ किया जा सके? आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शाज़र इलाही, हु इज़ अ यंग पर्सन हु इज़ फोकस्ड ऑन इम्पैक्ट and of course he's an impact practitioner. आजकल ये लीगल एड पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं. So let's learn more about the bottlenecks and what more can be done. Assalamu alaikum Shazar. वालेकुम अस्सलाम. Thank you for making time for us today. Thank you very much for having me. Shazar, it's very interesting. मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी कि लीगल एड से पहले you were also associated with the Punjab government in a consulting capacity. Yes. As a young person, why was this your choice? So, I'm a graduate of the Lahore University of Management Sciences. I've done my graduation in politics and economics. The corporate sector never really, and this isn't just something that LUMS mein hua tha, usse pehle se bhi, the corporate sector never really attracted me because for me, impact very much meant, doing things that I could see were making a difference. And so politics and economics and then my education LUMS sort of opened up more avenues, gave me the skills that I needed to actually become an impact practitioner. And then the first opportunity I got was working on a health roadmap, a primary healthcare reforms roadmap with the government of Punjab. And I worked there for 2 years. It was a phenomenal experience. But then I had to come back to Karachi. So I worked with Aman Foundation for a bit. Then I did my own thing in the middle. And then one fine day, I got a call from the Legal Aid Society saying, we work in the rule of law sector and we have X number of programs currently going on different thematic areas. Religious minorities, gender-based violence, alternative dispute resolution, and the call was with the CEO. It was with Barrister Hai Iman Sahib. And just that one phone call where her passion sort of spoke through the phone. And I realized the kind of impact these guys were making, so I decided to join LAS, and it's almost been 4.5 years now, and I have no plans of leaving anytime soon. शाज़र, मुझे बताओ कि एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब है, जिसका असर व रसूख नहीं है, वेल कनेक्टेड नहीं है, उसको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता हमारे अदालती निज़ाम से। ये कितना सही है? 50% ये बात सच है, लेकिन उसमें निज़ाम की इटसेल्फ कोई गलती नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेज इस तरह से करूँगा कि अल्टीमेटली इंसाफ मिल रहा था,
लेकिन ये जो अल्टीमेटली है ये आता बहुत देर के बाद से. सो इफ आई वाज टू शेयर अ कपल ऑफ नंबर्स विद यू, एंड बाय द वे ये जो जिन लोगों की आपने बात की है, मौशी तौर पे या मौशरती तौर पे जो लोग वल्नरेबल हैं हमारी सोसाइटी में, whether that's Sindh, interior Sindh, rural Sindh, Sangar, Dadu, or urban Karachi, Hyderabad, Sakhar, we work with all of them. So for that matter, जो religious minorities हैं या ख़वातीन हैं जिनके लिए समझते हैं कि ज़्यादा मुश्किल है. Even उसमें भी अगर आप डिटेल में जाएं तो even religious minorities में भी there are Christians, Hindus and Sikhs, but then there are scheduled castes within the Hindu community. There's the Bhil community, the Magwad community, who are the least sort of have the least access to social security, to justice. So we work with all of them. सही. So हमारा जो experience है सिद्रा वो ये है कि it's not so much about whether they get justice because the system is biased against the poor or the socially vulnerable. ऐसी बात नहीं है. इंसाफ के निज़ाम में जो fundamental problem is that there are exuberant delays in the system. और हम एक बहुत बड़ी pendency का शिकार हैं. There's a big case pendency. आज अगर मैं केस फाइल करूँगा तो वो केस सिविल केस, वो केस probably 15 से 16 साल में हल होगा. These are not my figures. These are figures by the Law and Justice Commission of Pakistan. Criminal case है तो 7 to 8 years. Now, and there's again a reason behind this. Now, it's very easy to say कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जुडिशरी काम नहीं कर रही. आजकल थोड़ा सा लोगों का फेवरेट टॉपिक हुआ है कि जुडिशरी है, so because of 1 or 2 or 3 controversial decisions, the entire institution is being presented as inefficient. That's not true. To quote a couple of figures, the total pendency of Pakistan जो इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तिवा केसेस की कुल तादाद है, that's around 2.2 million cases. यानी 22 लाख केसेस इस वक्त चल रहे हैं. और जो टोटल जजेस की sanctioned strength है, maximum vacancies, that's 4,000, that's the number of judges seats available, वो भी 70% capacity से ज़्यादा पे नहीं चल रहा है because people are either not qualifying to become judges or don't want to become judges. So इस वक्त we have 3,400 judges in Pakistan. 2.2 million cases, a population of 230 million, 23 करोड़ की population और सिर्फ 3,400 judges. So if Mansoor Ali Shah Sahab, the next Chief Justice of Pakistan at the Asma Jahangir conference said that in Pakistan we have 13 judges for every 1 million people. The global average is 90 judges per 1 million people. So we're short of around, somewhere around 70 something. Now, अच्छा, और किस तरह के केसेस हैं जो ज़्यादातर पेंडिंग है? ये ज़्यादातर वो केसेस हैं जिनका ताल्लुक इकोनॉमिकली एंड सोशली वल्नरेबल क्लासेस से ज़्यादा होता है. फैमिली केसेस, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, डिवोर्स, एक्सेट्रा. देन यू कम इनटू सर्विस मैटर्स, देन रिकवरी ऑफ मनी के केसेस, छोटे रेंट एंड एविक्शन केसेस, ज़मीनों के कब्जे. ये वो केसेस हैं जो 60% हमारे सिस्टम को चोक कर रहे हैं. इफ़ देयर वाज सम वे, एंड देयर इज़ अ वे, कि आप इन केसेस को अदालतों से बाहर लेके जाके किसी तरह रिजॉल्व कर लें, सो योर सिस्टम will open up and it will open up to everybody. Absolutely. लेकिन आपकी एक बात ने मुझे स्ट्राइक किया है. आपने कहा कि हमारे यहाँ लोग जजेस बनना नहीं चाहते. इसकी क्या वजह है? Again, there's 2 things to it. हमने कभी स्टडी कराई, हम जिस assumption से चल रहे थे वो ये थे कि अवाम जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं करती. And if you look at mainstream media, शायद आपको यही लगेगा कि the institution has lost its credibility. Not true. The data says something different. हमने सिंध के 8 ज़िलों में, जिसमें urban centers शामिल थे, rural communities शामिल थी, we conducted Pakistan's first predictive analysis of case pendency. कि कितनी pendency बढ़ेगी by 2030. So the figures were a little scary. It was that if you were to calculate between 2018 and 2020, तो हमारी total case pendency 180% बढ़ने वाली है by 2030, because people are just flocking to the court. But there's a reason they're flocking to the court, because when we asked them, do you trust the justice system to give you justice, 75% of them said absolutely yes. So इस वक्त इदारे में एतमाद है, उसकी efficiencies को हमने दूर करना. Now judges बनना क्यों नहीं चाह रहे? Again, 2 reasons. One is that your legal fraternity, your members of the legal fraternity have to give an exam to qualify as judges. They need to pass through that, that filter. A lot of them are not able to pass through that filter. So, आपकी जो legal education में जो आपकी law colleges का हाल है, जो आपकी legal education का overall एक standard है, that has some contribution to it. The other also is, Sidra, कि आप खुद imagine करें, you're a judge. Every single day you have a cause list, number of cases जो आपने उस दिन सुनने हैं, of 100 cases.
this is not humanly possible. And we are not talking about political Not pressurizing at and all. other मैं pressures ये anymore. pressure eliminate करके आपको यानी बताऊं। अभी आप एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी होती है, अगर आपने एक चीज़ पे फैसला देना है, जजमेंट देनी है, उसको बारीकी से देखना है, तो आप कितने ही केसेस एक दिन में सुन सकते हैं. आपका विजडम है ना, एक जज का विजडम है. Look, it's very easy to say कि नहीं ये सारे, that's not true. We've worked with the majority of judges whose wisdom, whose skills are commendable. Now, but वो wisdom उसने, अगर उसके पास, let's imagine a scenario where Pakistan's case pendency is gone, and now he only has to use that wisdom on 4 or 5 or 6 cases. अब आप imagine करें, मैंने पूरे दिन में सिर्फ 5 cases सुने हैं. अच्छे ममालिक में पूरे हफ्ते में 5 cases सुने जाते हैं. So that judge will read the case, prepare, कि उसने वो केस के फैक्ट्स को समझेगा. वो जब बैठेगा, he'll give more time एविडेंस प्रेजेंट करने में, विटनेस की स्टेटमेंट पे, लॉयर्स के आर्गुमेंट में, एंड ही विल टेक हिज ड्यू टाइम बिकॉज उसने इंसाफ करना है. आगे लोगों की किस्मतों के फैसले होने हैं. लाइक दिस अ बिग डिसीजन. समबडी इज ईदर गोइंग टू बी जेल्ड और कन्विक्टेड और देयर इज मनी और फैमिली एट स्टेक. नाउ इमेजिन मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 20 a day. So 100 cases a day. Barely you're giving 10 minutes for arguments in a single case, and they sit from 8 o'clock every single day to 2 PM official time. और फिर 2 बजे के बाद, मैंने ज़्यादातर जिन जजेस के साथ काम किया है on a civil judge level, at district court, at high court, they leave their chambers at 6, 7, 8, 9 PM at night because they're preparing for the next day, they're writing their judgments, और इस सब में उन्होंने अपनी judgments भी लिखनी है. But Shazir, let me be the devil's advocate. ये तो ओवर सिंप्लीफाइड लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो काम का बर्डन है उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं. हम जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से मिलते हैं, चाहे आप पुलिस की बात कर लें, चाहे आप नैप का जिक्र कर लें, वो कहते हैं हम अपनी ड्यू डिलिजेंस करके अगर कल्प्रिट्स हैं तो उनको पकड़ के लेके आते हैं. वो कभी कन्विक्ट नहीं होते क्योंकि उनके केसेस ना सुने जा रहे हैं, इल्तवा में पड़ रहे हैं, या उनको बेल मिल जाती है. यहाँ पे फॉल्ट किसका है? देखिए, हम डिफरेंशिएट करते हैं between a civil and a criminal case. Right? Okay. So let's pick up a very classic hardcore criminal case like rape. Rape में convictions की जो वजूहात हैं वो सिर्फ ट्रायल लेवल पे आके नहीं बनती. सही. There's a trial journey of a victim. एक रेप का वाकया हुआ, उस औरत ने कब, या उस बच्चे ने या उस मर्द ने कब उस वाकये को रिपोर्ट करवाया. सिंध में we conducted this study. 1.5 महीना सिर्फ रिपोर्टिंग में लगता है ऑन एवरेज. एंड वी वेंट थ्रू 100 केस फाइल्स जिसमें एक्चुअली कन्विक्शंस थी. 1.5 महीना आपने रिपोर्ट करने में लगाया, अगला 1.5 महीना इन्वेस्टिगेशन पे लगता है, फिर 3 महीने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे. नाउ टेल मी दिस, इफ अ रेप हैज हैपेंड, the majority of evidence is lost in 1.5 महीना. Let's say there were DNA samples of the accused that were on the woman's clothes. People don't know how to preserve evidence. Let's say कि उसके पास प्रेशर बहुत होते हैं विक्टिम के ऊपर कि रिजाइल कर जाओ, ना जाओ कोर्ट. शी बैटल्स ऑल ऑफ दोज एंड देन गोज टू द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन पे शी फाइंड्स दैट देयर इज एन SHO और यूजुअली पुलिस. अब तो सिंध पुलिस में थिंग्स आर चेंजिंग रियली रैपिडली, बट पहले ये होता था कि देयर इज अ SHO सिटिंग देयर हु इज नॉट सेंसिटाइज्ड ऑन रेप एट ऑल. द फर्स्ट क्वेश्चन ही वुड आस्क इज, आप रात को कहाँ थी, आप क्यों बाहर गई थी, आपने क्या पहना हुआ था, आपके साथ कोई था. इररेलेवेंट. Ask her about कि did you see the victim. एक sensitized तरीके से एक बात होती है ताकि उसको confidence आए कि मैंने justice system का part रहना. Then investigation. Up till 3 years ago, the same investigation officer जो murder को investigate करता है, जो kidnapping को करता है, जो terrorism को करता है, वही rape को करेगा. हालांकि investigation के dynamics ही different हैं. You're looking at a completely different, very specialized set of evidences. वो नहीं है. उसके बाद आती है बारी prosecution की. प्रोसिक्यूशन ने अब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेनी है, उसने विक्टिम के साथ जुड़ना है और अपने अपने आर्गुमेंट्स फ्रेम करने हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना है. उसने विक्टिम को ये कन्विंस करना है कि किसी भी स्टेज में कॉम्प्रोमाइज ना करना. मेडिको, इस सारे फेज में मेडिको लीगल ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट लिखनी है. सिंध में देयर इज अ डर्थ ऑफ मेडिको लीगल ऑफिसर्स, और जो हैं उनके ऊपर प्रेशर्स अपने हैं, और जो प्रेशर्स को लेट्स से झेल लेते हैं, उनकी रिपोर्ट्स इतनी टेक्निकल होती हैं और इतनी they don't write it in a language that a judge would be able to understand. They write it in a language that a doctor would be able to understand. फिर वो कोर्ट पहुंचता है. सो जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कमज़ोर है, प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट्स ठीक नहीं है, एविडेंस लॉस्ट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट इज टू कॉम्प्लिकेटेड और नॉट अवेलेबल, देन हाउ कैन द जज पॉसिबली convict somebody with weak evidence? These are all of the reasons कि हमारा conviction rate nationally is around 2 to 3%.
बट ये तो आपने बात की कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जिसमें रिपोर्टिंग का भी मसला है. अब देखें, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड मीडिया इन जनरल, हम कई केसेस को देखते हैं कि वो दे गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन एंड पब्लिक सेंटिमेंट, और फिर उनको ओपन एंड शट केसेस तस्वुर करने लगते हैं. आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू द नूर मुकद्दम केस. व्हाई आर वी सीइंग डिलेज देयर? Again, the law has to follow its due process. It just has to happen that way. उस ड्यू प्रोसेस में जब तक वो तमाम एविडेंसेस, वो मटेरियल्स, वो विक्टिम स्टेटमेंट्स, वो विटनेस स्टेटमेंट्स नहीं आ जाती हैं, तब तक वो केस तेजी से परसू नहीं करेगा. अभी भी मेरा ये ख्याल है कि नूर मुकद्दम केस हैज टेकन ऑन एवरेज लेस टाइम दैट एन एवरेज केस इन इस्लामाबाद टेक्स. 9.6 months लगते हैं on an average case to do. We saw that it reached the final stage of trial much before that. But ये तो of course, and I am in no way defending the fact that judges की capacity building की ज़रूरत है, उनकी trainings की ज़रूरत है. We did a lot of pilots in Sindh. So Sindh ka, when we started working with the government of Sindh back in 2019, the conviction rate of Sindh was 5%. 3% national से ज़्यादा था. आज it is 13%. Now ये जो 8% का increase आया, ये क्यों आया? Prosecutions की training हुई, investigation officers specialized post हो गए. तमाम सिंध के जेंडर बेस्ड वायलेंस जजेस को लीगल एड सोसाइटी ने ट्रेन किया, हाउ टू रीड अ मेडिकल लीगल रिपोर्ट, हाउ टू sort of question, यानी जितने बैरियर्स से जिसकी वजह से चोक हो रहा है उनको निकालना बहुत जरूरी था. Exactly. And then you see कि एवरेज टाइम भी कम हुआ और 5 से 8% पे कन्विक्शन, 5 से 13% पे कन्विक्शन रेट है. Now out of every 100 accused, 13 are actually getting convicted. सही. And this is then further causing कि जी एक डिटरेंट आ गया है कि अब अगर कोई इस तरह का मुलजिम है जो सोच रहा है मैंने ये करना है, उसके पास एक डिटरेंट है कि अब जो convictions हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है. सही. It takes a lot of pilots. It takes organizations such as the Legal Aid Society to work hand in glove with the government, with the judiciary, to identify के problems कहाँ पे. शाज़िर, जब हम यूथ की बात करते हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी है, स्किल्स नहीं है, प्रेशर्स लोग फील कर रहे हैं. हमने ये देखा है कि अब जितने नए क्रिमिनल स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हैं, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग हो, बाइक स्नैचिंग हो, उसमें यंग लोग शामिल हैं. इज़ दैट द एंड ऑफ लाइफ फॉर देम? क्या हम कह रहे हैं कि पीयर प्रेशर, बुरी सोहबत की वजह से अगर किसी ने ये रास्ता अपना लिया तो हमारा इंसाफ का निज़ाम उनको सही राह पे लाने के बजाय सारी ज़िंदगी के लिए क्रिमिनल बना देता है, ऑस्ट्रेसाइज करता है? So what happens? मैं आपको सिंध की एग्जांपल देता हूँ. हमारे प्रिजन के जो रूल्स हैं ना, वो लिखे हैं हमारे फॉर्मर कॉलोनाइजर में. Okay. And our former colonizers were very brutal against prisoners because the majority of prisoners at that time were not petty criminals या ये street criminals. They used to be political prisoners and rebels etc. were actively fighting against colonialism. तो वो बड़ी repressive किस्म का एक prison system है all across Pakistan. जो human rights पे बिल्कुल central, मतलब it doesn't revolve around the concept of human rights. Any reformative prison system जहाँ पे आप अंदर एक बच्चे को अगर एक let's say जेल में भेजते भी हो थोड़े टाइम के लिए, he comes out a better person who contributes to society. This only happens अगर आपने इंसानी हुकूक की बुनियादों पे अपना प्रिजन का निज़ाम बनाया हुआ. सिंध इज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने सिंध प्रिजन रूल्स 2019 जो है वो रिवाइज किए. They were also done by the Legal Aid Office under the supervision of Justice Nasir Aslam Zahid. We changed the prison rules altogether. आपने ह्यूमन राइट्स को हमने सेंटर में रखा है. So I'll give you a couple of examples of what's now happening. The Juvenile Justice Systems Act is now in place. बहुत सारे प्रोबेशन ऑफिसर्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सिंध में आया है और भी सूबों में है, जहाँ पे एक अंडर 16 बच्चे को वो प्रिजन की बजाय एक जुवेनाइल रिफॉर्मेटिव फैसिलिटी में भेजने का एक अब कॉन्सेप्ट आ रहा है जिस पे ऊपर काम हो रहा है. विद इन प्रिजन्स, इन सेंट्रल प्रिजन हैदराबाद, in Sakhar and in Karachi, if you go to Central Prison Karachi, there's an early learning center there. It's not just juveniles, right? It's also those mothers who were pregnant when they got incarcerated. और अब उनके जो बच्चे हैं वो prison की 4 walls से ही वाकिफ हैं. उनके लिए एक early learning center बनाया गया है by the government of Sindh, जिनका curriculum उन्होंने ही बनाया जिन्होंने KGS का curriculum बनाया. And you see them in uniform with a small zoo playing inside the Central Prison Karachi. You have skills development workshops women के लिए जो हैदराबाद में, कराची, सखर. You have एक प्रिजन पैरालीगल प्रोग्राम कि जो प्रिजनर आ रहा है उसको लॉ की तालीम दी जाती है और फिर वो आने वाले प्रिजनर्स को उनके हुकूक के बारे में पढ़ाता.
again, bright spots across Pakistan. It's happening. एटलीस्ट ये तसव्वुर तो पेश किया जाए कि अगर आप किसी जुर्म में मुलव्विस थे तो उसके बाद भी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो सकती है. लेकिन कुछ जुर्म ऐसे हैं जिसमें हमारा भी एक बहैसियत एक माशरे का, एक इंसान का बड़ा सख्त रिएक्शन आता है. शायद एक चीज़ है कि देयर इज़ अ क्राइम ऑफ पैशन, कि मुझे किसी पे गुस्सा आया किसी भी वजह से और मैंने उसको जान से मार दिया. लेकिन अब उसके अंदर जो बारबेरियनिज्म और दरिंदगी का हम एलिमेंट देख रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा है. यानी सिर्फ एक गोली चलाना या किसी का गला घोट देने की बात नहीं है. अब लोग टॉर्चर पे बिलीव करने लगे हैं. आप देखें किस तरह, यानी आपके पास ऐसे केसेस आते हैं. एक तो पेटीनेस बहुत है. जो मैंने ये बच्चों वाली मैं आपसे बात करी थी, एक 17 साल का शख्स अपने दोस्त को इसलिए मार देता है क्योंकि उसने बगैर इजाज़त के बर्गर खा लिया उसका. आई मीन दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली. या एक औरत को अपने हस्बैंड पे इतना गुस्सा आया कि उसको पहले काटा पीटा फिर उसका कोरमा बना दिया. What exactly is happening with us? देखिए, इंसाफ जो है ना वो किसी भी डेवलप्ड माशरे की एक कॉर्नरस्टोन होता है. We have to start from there. We can talk about economy, we can talk about education, we can talk about health. माशरे इंसाफ की बेसिस पे ऊपर जाता है. ये जो इस वक्त heinousness of the crime है और ये एक agitation in society है, it starts from the level where what you're talking about, but अगर आप ऊपर भी देख लें, right up in our political circles, between the government and legislature, what is happening? Essentially, two things are happening. The perception is that the legal system is not delivering, so I will get away with it. मैं कुछ भी कर लूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता. The other thing that's happening is we have forgotten to talk amicably to each other. Yeah. हमारे जो ऐसा नहीं कि क्राइम्स पहले नहीं होते थे, but एक दूसरे से बात करना आती थी लोगों को, बैठ के मसले सॉल्व करना आते थे. I think this is so interesting because now in my mind, शाज़र, मैं तमाम अपने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सोच रही थी कि वाकई जो क्लेम है, जो मुद्दा है कि किसी ने आपको क्या कहा या किस इशू पे आप लड़ रहे हैं, उसके नीचे वो सारा हर्ट, गिल्ट, एंगर होता है. जहाँ आपको किस अंदाज में बात की, मुझे वहाँ पे स्नप कर दिया, वो चीज़ें आती हैं. सो टेल मी, व्हाट्स द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ मीडिएशन इन सिचुएशंस लाइक दिस? क्या आपको लगता है कि रेट ऑफ सक्सेस, अभी आपने मिसाल दी कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर इख्तिलाफात हैं तो क्या the chance of making it work increase many fold अगर हम मीडिएशन की तरफ जाते हैं? मैं आपको पहले मैं इंटरनेशनली शुरू करता हूँ क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. पाकिस्तान मीडिएशन की ये जो बैंड वैगन है इस पे बहुत देर से चढ़ा. ये 15 years too late. चाइना में 2020 अलोन एक साल में 5.1 मिलियन केसेस कोर्ट से रेफर हुए हैं कि ये मीडिएशन में हल करो, ये हमारा काम नहीं है. जज की विजडम इस केस में इसलिए अप्लाई नहीं होगी क्योंकि आप दोनों आपस में सेटल कर सकते हैं, तो एक अटेम्प्ट करके आए. टर्की, द लॉ केम आउट इन टर्की इन 2012. पिछले हफ्ते उन्होंने अपना 5 मिलियंथ केस रेफर टू मीडिएशन किया. यूके में कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो हमारे इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट्स, फॉर एग्जांपल रिकोडेक, फॉर एग्जांपल कंपनीज ब्रेकिंग अप, शेयर होल्डर्स में डिस्प्यूट्स हैं. 20 billion pounds worth of disputes every year are mediated in the UK. Global success rate 75%. हमारे यहाँ तो एक लंबी कतार है ऐसे एग्जांपल्स की. अगर हम बात करें PTCL का, आपके सामने है कि the properties had a there's unresolved areas over there. Recodec मौजूद है. पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की अगर बात करें, बल्कि अगले हमने जितने गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है तो तखमीना लगाना. एंड प्लस मोर इम्पोर्टेंटली शाज़र, एक और चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नाउ the role of SIFC and other institutions when we want to invite foreign investment in Pakistan. इस वक्त एक foreign investor पाकिस्तान के बारे में डरता है क्या है कि अगर कोई dispute आ गया, कोई मसला आ गया, तब तो हम मसले में फंसे ही रहेंगे. Exactly. मैं very shortly, एक investor क्या देखता है? Confidentiality. Yes. I don't want to make it to the national news कि मैं चला गया हूँ कोर्ट में. और वो क्या देखता है? Time effectiveness. मेरे पास 15 साल नहीं है, मेरी रियल वैल्यू ऑफ मनी, माई कॉस्ट, माई फाइनेंसिंग, माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे 15 से 20 दिन में इसको रेजोल्यूशन चाहिए. Then he looks at cost effectiveness, right? Then he looks at whether I'll be able to maintain a relationship with my partner. The relationship does not have to break down. कोर्ट में क्या होता है? रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर जाती है. दो भाइयों का डिस्प्यूट है, उनकी नस्लें आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के. बिल्कुल. रिलेशनशिप तो ठीक है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है ना. So these are some of the things. And then judicially enforceable होना चाहिए. ये तमाम चीज़ें मीडिएशन गारंटी करती है. अब क्या हो रहा है? एक इन्वेस्टर आता है, आप उसको, आपकी क्लॉज क्या कहती है, चाहे वो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है या एक फॉरेन इन्वेस्टर की प्राइवेट कंपनी के साथ है पाकिस्तान में, कि अगर डिस्प्यूट हुआ हम आपस में निगोशिएट करेंगे, 90% दैट टेंड्स टू फेल. उसके बाद वो इन्वेस्टर हमें पकड़ के लंदन आर्बिट्रेशन सेंटर लेके जाएगा, पेरिस लेके जाएगा, सिंगापुर लेके जाएगा, जहाँ पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सिर्फ आर्बिट्रेशन कॉस्ट आएगी. उसके बाद
हम आपको कोर्ट लेके जाएंगे. The investor is like, I'm going to pack up and I will leave. Yes. That's what happens. इस वक्त आपके SIFC के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है? सऊदी अरेबिया, कतर, UAE. These are your three target Big countries, partners, yeah. big partners in the countries that you're targeting. Saudi Arab, Qatar, UAE have all three signed the Singapore Convention on Mediation. All three of them are now building their investor-state mediation ecosystems. Their investors are now becoming used to mediation. What are you offering them in Pakistan? So you're saying that we are 15 years too late to the party. At least. आप एक certified mediator है. How many more do we need? अभी आपने बात की कि judicial system की अगर हम बात करते हैं तो judges कम है हमारे पास. The number of cases that we have and the potential that we have. Yes. How many more mediators do we need? Look, मैं mediators ज़्यादा I'll talk about the two kinds of systems that we need, right? इस वक्त हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए. सिंध में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि लोगों को अदालत जाने से पहले मीडिएशन ऑफर करें, which is called voluntary mediation. Okay. You come to mediation and try resolving your dispute. 89% success rate. 250-300 cases last 4 months alone. इस्लामाबाद में हमने क्या पायलट किया कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुपरविजन में, वेरी ग्रेशियस ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने हमें जगह दी हाई कोर्ट के अंदर. उन्होंने कहा अब जो करंट पेंडिंग केसेस हैं वो आपके पास भेजेंगे इस सेंटर में एंड यू ट्राई एंड रिजॉल्व देम. 37% success rate. But Mansoor Ali Shah Saab has successfully experimented in Punjab कि मैं एक जज को मीडिएटर ट्रेन करूंगा, वो कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर में बैठेगा, बाकी जजेस उसको मीडिएशन के केसेस रेफर करेंगे. 60% success rate. Wonderful. Now here's what we need. What Pakistan needs is a two-fold system. आपके हर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर एक कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर हो जिसमें जजेस आर ट्रेन्ड एज मीडिएटर्स. या तो आप एडिशनल जजेस लाओ जिनको सिर्फ मीडिएशन पे ट्रेन करो. You have a separate incentive structure. उनका काम है उस मीडिएशन सेंटर में बैठ के उस डिस्ट्रिक्ट के पेंडिंग केसेस को 15-15 दिन में मीडिएट करके निकालना. So it's a two-stream process. Two-stream process, right? So that's the court next और कोर्ट से बाहर. All of the structures जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट आ सकता है. The Police Dispute Resolution Center, District Peace Committee, Interfaith Harmony Committee, तहसीलदार, पटवारी, आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफिस एंड योर चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, इन सब को मीडिएशन इनेबल करना है. यू ब्रिंग अप, ट्रेन 100 पीपल फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट हु आर ट्रस्टेबल, डोंट हैव टू बी लॉयर्स, दे कैन बी एनीबॉडी, कनेक्ट देम टू दीस सेंटर्स. इसमें बड़ा माइंडसेट का भी फर्क है ना. यू स्टॉप सीइंग द पर्सन. जैसे आपने कहा कि मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो भी आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करना है, बट यू स्टिल कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट अनदर इंडिविजुअल. यू स्टिल कंटिन्यू टू सी कि अच्छा यार हमारा ये इख्तिलाफ है लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, एंड वेयर इज दैट मीन पॉइंट वेयर वी कैन मीट. दैट्स व्हाट मीडिएशन डज. यू डिस्कवर दैट पॉइंट. लेकिन अच्छा मुझे बताएं, हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिसके अंदर वो हार्डकोर नेगोशिएटर्स की बात करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर आपको भी पसंद होगा वो जॉनरा कि जहाज हाईजैक हो गया, अब हाईजैकर की कुछ डिमांड है और नीचे नेगोशिएट किया जा रहा है उसको. फिर इसी तरह आपके टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, यरगमाल बना लिया लोगों को, वहाँ नेगोशिएशन हो रही है. एंड यू आर अ ट्रेन मीडिएटर. आई वांट फॉर द बेनिफिट ऑफ माय व्यूअर्स, मुझे बताएं कि what are some of the tips that make you know, एक तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मुझे लगता है ये यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डील में अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं और निकलने के बाद दोनों हरीफों को ये लग रहा है कि यार मेरे साथ थोड़ा कम हो गया है और अगले को ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, दैट्स अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन. राइट? लेकिन एज अ नेगोशिएटर मुझे क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? गुड पॉइंट. सो I'll give you an example. So जिस इदारे से मेरी ट्रेनिंग एज अ मीडिएटर, that it also offers a specialization in hostage negotiation. So like the same trainers have trained me, so I kind of know what this is. Harvard came up with a project in 1980 which was called the Project on Negotiation. एक किताब है Getting to Yes, which is written by William Fisher and Robert Fisher and William Ury. Everybody who wants to know कि मैंने एक बेहतर negotiator कैसे बनना है, चाहे आप जाके कपड़ा ले रहे हैं बाजार से जिसकी आपने कीमत कम करवानी है, या you want to negotiate multi-billion-dollar deals, this book is a must read. Okay. Diplomats are trained on this book. Now he very beautifully puts this बड़े simplistic एक तरीके में कि हम जिस तरह every day में negotiate करते हैं, इसको हम positional bargaining या positional negotiation कहते हैं. Even example, let's say I go to a cloth shop, एक कपड़े की दुकान पे गया. अब मेरी पोजीशन ये है कि मैंने आज जो कपड़ा मुझे पसंद आ गया है, मैंने 200 रुपये से कम 1 रुपया इसको ज़्यादा नहीं देना. सही. The दुकानदार says कि I'm offering him 1,000, बट आई नो कि मैं इसको डिस्काउंट पे मिनिमम 800 का दे सकता हूँ. 800 से 1 रुपया मैंने इससे कम नहीं लेना. Now what are these? These are positions. अब what do we normally do? We keep on sort of using strategies
which are inefficient and very time taking. For example, we keep on sort of argumenting कि अगला तो इतने का दे रहा है, उस दुकानदार को भी पता है कि आप देना है तो दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, बट दैट दुकानदार नोज कि आपने अगले का पता भी नहीं किया, वह भी बोल रहे हैं, राइट? सो इसी तरह यू नो इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप छोड़ के क्यों नहीं चले गए, आपको अच्छा तो लग रहा है. सो नाउ अच्छा, फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव व्हाटएवर आर्गुमेंट यू आर गिविंग, उसके पास एक जवाब है. जो वो आर्गुमेंट दे रहा है आपके पास जवाब है, वो क्या रहा है कि आप और अपनी अपनी पोजीशंस में इंट्रेंच हो रहे हैं. बिल्कुल. और एक पॉइंट ये आता है कि जब बात इस पे आ जाती है देना है तो दो वरना मैं जा रही हूँ. नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, एक टाइम लगा है इस पे, नंबर 1. नंबर 2, वो रिलेशनशिप सावर हो गया है. अगर वो ज्यादा देर आपको उस दुकान पे आधा घंटा घंटा खड़ा रखता है, चांसेस आर कि आप दोबारा उसके पास नहीं जाएंगी. अगर क्वालिटी अच्छी भी हो तो नहीं जाएंगी. उसके भी एक रिकरिंग ग्राहक जो है वो लॉस्ट हो गया. और उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है ना, अगर वो सोया है नहीं सोया है, ज्यादा गुस्से में, उसको भूख लगी हुई है, तो स्टेट ऑफ माइंड, किस अंदाज में कोई बात कही गई है, वो भी कम्स इनटू प्ले. ये सारी की सारी चीजें आज रिलेटिवली इनएफिशिएंट वेज ऑफ नेगोशिएटिंग. नाउ व्हाट इज एफिशिएंट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ नेगोशिएशन से वो ये कहता है, there's 4 fundamental principles. Number 1, attack the problem, not the party. दुकानदार जिद्दी है, दुकानदार बुरा है, ये तो वैसे ही खड़ूस है, वो आपके बारे में सोच रहा है कि ये तो बड़ी कंजूस. Attack the problem. Problem क्या है? He wants to sell, I want to buy. That's the problem. So keep your arguments on that. Number 2, उसका जो एक कंडीशन होती है वो ये है कि म्यूचुअल गेन के लिए एक एरिया ढूंढें जहाँ पे उसका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा हो और आपका भी इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा हो. आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको बेहतर क्वालिटी का कपड़ा चाहिए. उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट ये है कि मैंने इसको रिकरिंग क्लाइंट बनाना. बिकॉज जब भी आप अपने बिजनेस की फोरकास्टिंग करते हो, इसलिए इस पे नहीं करते कि मेरे पास वन टाइम कस्टमर कौन आए. सो माय फादर इज अ मास्टर नेगोशिएटर. मुझे हमेशा लगता है कि वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं, ग्राहक बनाने वाली बात है ना. सो बिकॉज उसका इंटरेस्ट है आपको ग्राहक बनाना, बिकॉज आप हर महीने आएंगे. सो देन यू कम अप विद अ वे जिसमें आपके और उसके दोनों के इंटरेस्ट मीट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू से कि जी हमारे घर में अगले महीने शादी आ रही है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्लॉथ की डिमांड जो होगी, सो मैं सबको तुम्हारे पास लाऊंगी, मुझे आज ही. सो अब नाउ ही नोज कि यू विल बी कमिंग 2 or 3 months from now. और यू कैन इवन से कि मुझे 10 जोड़े खरीदने, एक का सही लगाओगे तो मैं अभी तुमसे 10 लेके जाऊंगी. म्यूचुअल गेन वाली बात. एग्जैक्टली. नंबर 3, जहां आप फंस जाएं वहां पे क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की नेगोशिएशंस में ये बहुत होता है कि आप कहती है नहीं दिस प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट दिस, मैं कहता हूँ दिस प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट दिस. ऑलवेज गेट अ थर्ड पर्सन टू इंटरवीन टू गिव यू न्यूट्रल ओपिनियन कि इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ताकि नेगोशिएशन में ये जो पोजीशंस हैं कि नहीं क्या होगी वैल्यू, उस चीज को पहले एड्रेस कर लें. सही. So these are a couple of things which really. चौथा पॉइंट भी बताना है. चौथा पॉइंट is basically where you're focus on developing a relationship with the other party. Now हम जिस तरह नेगोशिएट करते हैं वो बहुत एक रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन है. देना है तो दो वरना चले जाओ, इतने का लूंगी, वो एक टाइम कंज्यूमिंग मैटर होता है. Now अब जब आप इसको एक्सपैंड करके एक उस लेवल पे देखते हैं जहाँ पे दो बिजनेसेस मल्टी-बिलियन डॉलर डील्स नेगोशिएट कर रही हैं, जहाँ पे स्टेट लेट्स से इज टॉकिंग टू अ टेरर ग्रुप टू नेगोशिएट. This happens. हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, they're very well trained on this. Always focus on interest based bargaining. Interest based पे जब आप करेंगे, negotiations will be a lot more quicker, a lot more efficient. Mediation में यही होता है. I've been mediating a lot of cases जिसमें पार्टी की पोजीशन ये थी मुझे खुला चाहिए और इनकी भी थी कि जी हाँ जी बस we just want to go away. But I could see कि there's at least one party जो नहीं चाहती है actually. अब उनकी conditions होती हैं. उन कंडीशंस को आप कॉमन एलिमेंट कहाँ पे लाते हो? रियलिटी टेस्टिंग करते हो बहुत ज़्यादा. आप उनको एक मीन ग्राउंड पे कैसे ला सकते हो जहाँ दोनों को ये एहसास हो कि ठीक है 100% मेरी बात अगर मानी नहीं भी गई है लेकिन इसमें मेरा फ़ायदा है. Shazir, we cannot close this session without understanding the role of mediation in our immediate neighbors' diplomacy. यानी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो चाहे भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, ऐसा लगता है हम बात ही नहीं करते. तो क्या ये हमारी सफारतकारी का फेलियर है? अभी आपने कहा कि बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त तरीन डिप्लोमेट्स हमारे पास मौजूद हैं. Where are we falling short? I think Pakistan needs to understand what its interests are first. This is where we're failing. I think आप तब तक इफेक्टिव नेगोशिएशन में नहीं बैठ सकते जब तक आपको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता. सही. Do we want the Iranian sort of gas to come in? Is it in our interest? Trade with India, is it in our interest? Trade with Afghanistan, better diplomatic relations, is it in our interest? You know, so I think it's a real, and of course it's very natural कि जहाँ पे political scenario बहुत तेजी से change होता हो वहाँ पे interests को identify करना मुश्किल हो जाता है. It's very natural. It will take us some time, but the first thing that needs to be done is everybody needs to sit on a table and say these are Pakistan's interests. जब आप अपने interests को identify करेंगे फिर आप negotiation strategy बनाएंगे, because
your everywhere in the world, by the way, is ये positional bargaining जो है ये ज़्यादा होती जा रही है. You see what's happening around the world. Nobody is willing to give up on their position. Our neighbor towards the east, they're very sort of positional when it comes to this. सर मुझे इसलिए लगता है कि ये जो पोजिशनैलिटी में हम इतने इंट्रेंच हो रहे हैं, यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इज बिकॉज देयर इज अ बेनिफिट एंड देयर इज अ डिविडेंड ऑफ दैट इन इंटरनल पॉलिटिक्स. जितने लोग इस तरह की इंट्रेंच पोजिशंस में हैं, ये मसाला या ये मंजन या ये नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली उनके अपने बैलेट बॉक्सेस पे बिकता है. There's an Indian author, his name is Pankaj Mishra. I would really recommend everybody to read Age of Anger. मुझे भी मेरे जो मेंटोर थे लम्स के, उन्होंने बताई थी ये किताब. Pankaj Mishra talks about, मुझे बैटमैन का डायलॉग है ना, what happens when an immovable force meets an unstoppable force meets an immovable object. They collide and then there's a huge explosion. Yes. Now the unstoppable force is the expectations of the youth of this world. I'm not going to say this country. Social media, globalization, interconnectivity, seeing that a better lifestyle is possible, a better system is possible. ये सारी आपकी youth की वो aspirations हैं जो एक unstoppable force की तरह आ रही हैं. Immovable object क्या है? आपकी अपने political processes, आपकी judicial processes, जो उस space पे evolve नहीं कर रहे हैं. जब ये clash करते हैं, तो then you have the rise of right-wing politics. It's like politics which is very, very, जिसको आप कहते हैं individual based. The Modis of India, the Trumps of America. So all of that happens जब ये लोगों में एक expectation होती है और वो उस expectation पे और उसको जो वलवला होता है उसके ऊपर खेल के somebody comes into politics. बिल्कुल. Now this is happening all around the world. Pakistan needs to play a very delicate balancing game. Do we fall for this, or do we, as reasonable sort of people, sit on the table with all stakeholders and mediate between internal partners first, identify common interests between everybody, and then sort of build up a strategy for Pakistan. It happens in other parts of the world. Thailand has a political dispute resolution forum. Kenya has a political parties dispute resolution forum. Why? Because उनको पता है कि ये जो अदालत में केस फाइल हुआ है ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल ईगो. मेरे जहन में पाकिस्तान की एक सियासी जमात आ रही है जिसको शायद बैठना पड़ेगा इस मीडिएशन में और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देखें अगर आगे बढ़ना है तो कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसको लेके चलना पड़ेगा. You cannot go, you can't get away with anything without talking to others. Absolutely. But let's take a slightly different lens and probably my last question to you. मुझे बताएं कि जब आपने एग्जांपल दी this force and the immovable object, अगर the immovable object is our climate and our planet's reality, sustainability, और दूसरी तरफ जो force आ रही है वो force है capitalism की, can this greed be somehow mediated? Not at all. नहीं. ये चीज़ नहीं हो सकती. Like जिस तरह non-compoundable cases, क्यों non-compoundable cases mediation में नहीं जा सकते? Because there is a threat to the state. You've committed an offense where the state will not let you go. So climate change and what we're doing to the world around us, and particularly what this hyper-consumerist capitalism has done to the world, is criminal. Is against the very interest of the world. मैं इसको state के उसमें ले रहा हूँ. You can't talk about this. You have to act on this. And that is why, unfortunately, every forum जो इस तरह का बनता है, and with all due respect, तभी वो एक talk shop बन जाता है. You end up coming, talking about it. सबको एक green planet चाहिए, सबको चाहिए कि आप greener sources of energy की तरफ चले जाएं. But what you're doing is just barely enough, और आपके interest ही एक दूसरे से मिल नहीं रहे. The world has currently spent approximately $5 to $6 trillion on renewable energy. Do you know what the total oil consumption has jumped down from? It has jumped down by 1%. What I'm trying to say is, you can talk about it, you can come up with fancy ideas, but on-ground realities are very different. Abhi Chitral mein, the local MPA came up, abhi parson unki video aayi, and he's saying that we would like the government to declare a state of emergency. We've had a bad drought following, as in before this, और अब बर्फ पड़ रही है. And look how quickly it is coming. Like we are right now seeing कि चाइना में आपके सामने एक सिनेरियो है. There are tornadoes hitting US. अगर हम सिर्फ GCC countries की बात करते हैं, यानी desert areas में आप देख रहे हैं कि जिस तरह की बारिशें, thunderstorms हो रहे हैं. I think that is where mediation, unfortunately, cannot be the solution. Just in one thing, एक जगह पे हो सकती है. You know this fund जहाँ पे आपने climate restorative fund hai, there are developing countries are on the tail end of the climate crisis. We're the ones who are bearing the brunt of this force. The majority of the people who are causing the countries that are actually releasing those the carbon emissions. The carbon emissions are actually developed countries, highly industrialized countries. So there needs to be some form of reparations paid to developing countries. That is where mediation is ideal. How much is it going to be?
One cannot emphasize enough the benefits of mediation. बड़े बड़े मामलात को आप डायलॉग से, मज़ाकरात से हल कर सकते हैं. And at the same time you can preserve relationships as well. कई दफ़ा डिस्प्यूट को हल करने के चक्कर में वो ताल्लुक़, वो रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. जबकि हो सकता है आप दोबारा कभी बिज़नेस साथ करना चाहें, एक दूसरे को देखना चाहें. इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक शादीशुदा जोड़े की ही बात की जाए, अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो मे बी दे हैव किड्स एंड दे हैव टू को पेरेंट फॉर लाइफ. तो ताल्लुकात को बचाइए और ख़ास तौर पे मीडिएशन के ज़रिए अगर आप अपने मामलात को हल कर सकते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट. इफ़ यू रिक्वायर एनी हेल्प एंड इफ़ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू शाज़र और लीगल एड पाकिस्तान तो उसकी तमाम डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. कमेंट्स एंड फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन एंड व्हाट वाज द आहा मोमेंट फॉर यू. कोई ऐसी चीज़ दैट हैज़ स्टक विद यू एंड यू रियली अप्रिशिएटेड. आई डू लिसन टू ऑल द फीडबैक जो मेरे पास आती है एंड आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एज वेल. सो कीप देम कमिंग. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.